Good morning, good afternoon, my dear students. I hope you all have enjoyed all the days, day 1, day 2, and day 3 of home decoration. On the day 1, we have discussed about what is home and what is the difference between house. Where we live, it becomes home, and where we used to decorate our items and where we used to have a cool space or our own space is the home. Second day, we have talked about more about the psychology, mood boards, and wherever you sit in a place, that place becomes your own space. For example, your bedroom. When you just sit on your bedroom, you just see all the furnitures, all the bedroom, all the skylights, all the walls, and you get attracted to it. When you go into the hotel, then also when you go into the hotels or when you go into any of your restaurant or when you go into any of your resort, some of that space attracts you, like its furniture, like its color, like something. But when you go to an open space like any temple or any of the space, you feel very positive things. And even in your home, when you go into any of your space, you feel very positive, and in some place, you feel very negative, and you have a dilemma in your eyes. Why this space is becoming so negative? What should I do to could to do it better? So, when Kriti ma'am was teaching you on the day 3, she has taught you about the color psychology and the indoor plants. So, what is color psychology? She has talked about white, black, green, yellow, each and every color that may radiate to your energy level and talks to you. Even in the Sanjay sir class also, he has talked about the intangible and tangible thing. Intangible is all about which you can't see, which you can't touch, and tangible is which you can't see and which you can touch. So colors are like that. When you see all the colors, your wall, your inner space, your anything, that actually when you see that, then your inner space, that your inner mind, you feel relaxed, calm, cool, radiated. So all the colors have other different type of psychology, and so all the colors have different types of psychology, and when you do it, they just radiate their energy. Okay, so now I am sharing my screen today, and also I will talk about the indoor plants also, why they are necessary. You know that there is a green color in the indoor plants. Green color has that maximum intensity that it uh, absorbs some light and radiates, and it also gives the soothing feeling to your eyes. So all these days, 1, 2, 3, you have learned so much in the home decoration. But today we will talk about the Vastu Shastra, its principle and why is it necessary in your home. I told you in the WhatsApp group to make your own layout of your house or your home. Why? Today we are going to learn that today. And if you all want to share your, please be ready with your layouts in one of your, just upload in your mobile or whatever you are using your laptop. After this my session, I will open my screen sharing to allow multiple attendees to share their screen. So at one time, you all can share all your layouts.
I hope today's class will be enjoying for you and you will learn from it. Don't miss out. Okay, now I'm sharing my screen. So here you can see today's day 4, Vastu Shastra and basic layout. Now, what is Vastu Shastra? If I talk about Vastu Shastra is a um, sorry, Vastu Shastra is a vast and ancient sciences of living. The word Vastu is derived from the root Vas, which means to reside. वास्तु का मतलब होता है जहां हम लोग रहते हैं. वास मतलब वास करने गए. ऐसा आपने सुना होगा रामायण में कि सीता जी वास करने गई, वहां वास करने गए. तो जो वर्ड है वास्तु का वास, टू रिसाइड से निकला है कि हम वहां वास करने गए. वास्तु मीन्स dwelling of the humans and God in the original Sanskrit literature. वास्तु का मतलब क्या है? जहाँ पे ह्यूमंस और भगवान दोनों एक साथ रहते हैं. संस्कृत लिटरेचर में इसकी ये मीनिंग है. There are many factors that govern in the life of a human being in his fate, that is karma and surroundings. और इसके अकॉर्डिंग जो इंसान जो कर्म करता है, फेट उसका जो डेस्टिनी है, जो उसकी सराउंडिंग्स है, ये सब कुछ वास्तु शास्त्र में आती है. वास्तु आपकी चीजों को और अच्छा बना सकता है, या फिर अगर कोई चीज कड़वी है तो उसको थोड़ा कम कड़वी करेगा, बेकार नहीं करेगा. ओके, सो दिस इज now, as many of our tradition, Vastu too got neglected over centuries for what of patronage. बहुत जगह पे वास्तु को नेग्लेक्ट किया गया, लेकिन आई विल टेल यू लाइक इन माय 5 years of architecture, I have learned about the vastu only. Although we are prone to use these changes, but when you talk about any office, your shops, your office or any industrial complex, वास्तु इज यूज्ड. इवन जब आप घर भी लेते हो तो हम वास्तु एक बार देखते हैं कि भाई ईस्ट डायरेक्शन या साउथ डायरेक्शन ऐसा क्यों है. So then thinking of the people dwelling or working in these places is not harmonious and evolutionary, leading to disorder and illness. So इसके लॉज इलेबोरेट किए गए हैं वास्तु में. उसके बाद अगर हम घर की बात करें एशियंट इंडिया में, तो पहले क्या था, हाउस क्राफ्ट यूज करते थे कि कहीं सीक्रेट सेरेमनी कुछ यूज कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें हमारी वास्तु की बात करती थी. लेकिन हम लोग ये मानते हैं कि एक स्पिरिट है जो इस पूरे घर को होल्ड करी है, उसका नाम हम लोग देते हैं वास्तु पुरुष. और उसके कुछ डायरेक्शन है जो हम लोग आज पढ़ेंगे. उसके डायरेक्शन क्या क्या है आप लोग ये जानेंगे. जैसे पहला डायरेक्शन है, डिफरेंट गॉड्स इसमें डिसाइड करते हैं वास्तु पुरुष में, लाइक ब्रह्मा, ईश्वर, अग्नि, वरुण, विंड, यम एंड डेमन. हर तरीके के लोग हैं यहाँ पे. तो जैसे जैसे हमारी हवाएं चलती है, वेव्स चलती है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, हम इसको आगे बढ़ाते हैं. तो ये है हमारे वास्तु पुरुष. वास्तु पुरुष मतलब एक ऐसा घर में पुरुष हम लोग मानते हैं कि जो पुरुष मतलब इंसान, वास्तु मतलब हर डायरेक्शन से रिलेटेड हम लोग को जो चीजें पूरी करें. द स्पिरिट ऑफ द हाउस वाज कॉल्ड वास्तु पुरुष एंड डिफरेंट कार्डिनल डायरेक्शन. आप पहली इमेज में देखिए तो आप देख सकते हैं पहले वाले में क्या दिखाया गया है, रोग, नक, मुखिया, कुबेर, शनि. तो ये टोटल कितने हैं आपके, ये 32 हैं करीब. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. और 9 तो ये अंदर के हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8. तो कॉर्नर कॉर्नर पे अगर आप देखिए तो टोटल 9 है.
तो 9 4 जा जिसमें से 4 जो है कॉमन है। तो 36 में अगर 4 घटा दे तो कितना हो जाएगा? 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41। सो हमारा जो डिवाइडेशन होता है वो हर पार्ट्स में डिवाइड होने लगता है। जैसे कि अगर हम इस सबको एक बार ध्यान से देखिए तो एक तरफ वरुण है, एक तरफ रुद्र है, एक तरफ सूर्य है, एक तरफ यम है, तो उससे रिलेटेड सारी चीजें हैं। तो ऊपर में हम नॉर्थ स्थान मानते हैं, नीचे पे साउथ, इस तरफ पे ईस्ट जहाँ पे सूर्य आपका दिख रहा है, और उस तरफ पे वेस्ट मीन्स वरुण। सूर्य मतलब जहां से सूरज उगता है दैट इज सूर्य, और जहां पे वो ढलता है दैट इज वरुण। और कुबेर मतलब धन का, जहां पे नॉर्थ साइड में हम लोग धन को मानते हैं शुभ, तो वो धन हो गया। और साउथ में हम लोग यम को मानते हैं। सो दीज आर द बेसिक थिंग। वी विल गो टू द नेक्स्ट। इसके बाद मैं ओके, अगर आप अपने घरों में बहुत सारी चीजों को देखिए, बहुत सारी चीजें आपकी चैनलाइज होती है वास्तु के अकॉर्डिंग। तो वास्तु क्या है? वास्तु का मतलब, जैसे कि मैंने अपनी पिछली स्लाइड में दिखाया, और जहां से सूरज उगा वहां से आपको सूर्य दिखा, फिर जहां पे वेस्ट हुआ वहां पे वहां का हुआ वरुण, जहां पे हवा चल रही है, वरुण मीन्स एयर। और जहां ऊपर की बात करें दैट इज कुबेर स्थान, दैट इज नॉर्थ, और नीचे पे यम स्थान, और बाकी जो बीच बीच में आ रहे हैं आपके ये सारे वो हैं। और हाँ, एक चीज और, अगर नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट है तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आएगा ईश, ईस्ट और साउथ के बीच में अग्नि कोण आता है, और यम और मतलब कि साउथ वेस्ट के बीच में क्या आ रहा है? पितृ। इसके बारे में और डिटेल में भी पढ़ेंगे। और फिर नॉर्थ और वेस्ट के बीच में रोग। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में हम आगे डिटेल में जानेंगे। तो जितने भी चीजें हैं, अगर आप मेन गेट की बात करें, हवाएं आती हैं तो ये सब किसके पार्ट हैं? अगर हवाएं आ रही है तो वास्तु इनडायरेक्टली आपकी पावर को इवोक करता है, नेचर से हमें रूबरू कराता है। इसका हम लोग कहाँ कहाँ देख सकते हैं? Man and other animals are made from the Panchbhut, that is the 5 basic element. 5 बेसिक एलिमेंट क्या रहेंगे? एक है आपका स्पेस, अर्थ और फायर, वाटर एंड एयर, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश और जल। 5 महाभूत से मिलाकर हमारी खुद की हमारी ह्यूमन बॉडी बनी है। स्पेस, अगर आप लोग अंदर जाएं तो हमें स्पेस मिलती है, मतलब खाली स्थान। अर्थ, अर्थ मतलब जब हम लोग की ट्यूब इवन होती है तो हम लोग किसमें मिल जाते हैं? अर्थ में, राख बन जाते हैं। फायर, आग, आग मतलब एक तरीके से आप दूसरे को रेजोनेट कर सकते हैं, गुस्सा, या जब भूख लगती है तो एक आग जैसी लगती है। तो ये सारी प्रवृत्ति हमारे अंदर है। पानी, जब हम लोग कूल फील करते हैं ऐसा कुछ, तो वो पानी प्रवृत्ति होती है। हवा, when we are very free, very you know very बहुत ज्यादा फ्री होते हैं, या बहुत ज्यादा एरी वाली फीलिंग करते हैं, दैट इज इंटेंजिबल फीलिंग। तो एयर। सो जो हमारा ह्यूमन शरीर है वो इन 5 तत्वों से मिलके बना है। ये हम आप अपने व्यवहार में भी देख सकते हैं। सो इफ वी गिव प्रॉपर प्लेस टू दीज एलिमेंट्स, तो ये जो हमारे 5 चीजें हैं, ये ना सिर्फ हमारे शरीर में है बल्कि हमारे आसपास नेचर में भी है। हमारा अर्थ भी इन्हीं, हमारा जो पूरा यूनिवर्स है इस चीज से रेजोनेट करता है। तो नेचर क्या है? नेचर भगवान है, नेचर इज द गॉड। वन कैन एक्सपीरियंस इटर्नल ट्रूथ ऑफ नेचर ऑन एवरी स्टेप। तो जैसे कि हमने 5 चीजों को बताया, ईथर मतलब स्पेस, स्पेस और हवा के बीच में आता है वत, नाम है। अर्थ और वाटर के बीच में आता है
कफा, फायर और वाटर के बीच में आता है पित्त। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु। इंग्लिश में अर्थ, वाटर, फायर, स्पेस एंड एयर। तो अभी इसके बारे में बात करते हैं, फिर हम एक वीडियो देखेंगे। So we can see nature with our own eyes and we can experience पंच महाभूत। नेचर को हम खुद देख भी सकते हैं। कैसे? ये जो फीलिंग है, तो ये सब फीलिंग कैसे होती है पांच चीजों की? ये सब क्या है? पंच महाभूत। इनको टोटल मिला के पंच महाभूत कहा जाता है। और एक कहावत है, विदाउट कर्म और एक्शन देयर आर नो फ्रूट्स। जब तक आप कुछ कर्म नहीं करोगे, तब तक आप कुछ करोगे नहीं, आपको उसका कुछ फल नहीं मिलेगा। हम लोग को कोई भी रिटर्न नहीं मिलता अगर हम लोग कर्मा ना करें। तो वास्तु शास्त्र, वी कैन रिमूव द डिफेक्ट्स इन द स्ट्रक्चर, एंजॉय द फ्रूट्स। तो हमें कर्म करना होगा, उसके अकॉर्डिंग अगर हम कुछ काम करें, अपना होम जो डेकोरेशन है उसको उसके अकॉर्डिंग काम करें, तो हमारा वास्तु जो हम कर्म कर रहे हैं कुछ चीज के लिए, सही करने के लिए, तो हमें उसके फल अच्छे मिलेंगे। आप लोगों ने कहावत सुनी होगी, ये आम बड़े मीठे हैं। पर वो कैसे मीठे हैं, क्यों मीठे हैं, ये सब आप नहीं सोचते हो जब खाते हो। उसी तरीके से वास्तुशास्त्र भी यही कहता है कि आप अपने कर्म में एंजॉय करो, और जो हमारे पांच महाभूत है उसको देखिए। अब डिफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? ये हमारा घर है, उसमें हो सकता है कोई चीज गलत लगी है, कुछ गड़बड़ लगा है। हम जैसे पहले वाले में हमने क्या किया, पेड़ लगाए, झूला लगाया। दूसरे वाले में हमने, आप देख सकते हो पहली में पानी दिखा रहे हैं कि पानी बह रहा है। इसके बारे में डिटेल में भी पढ़ेंगे। कहीं कहीं पे लक्ष्मी जी में हमने लाल रंग का फूल रखा है। तो दीज आर द थिंग्स वास्तु से रिलेटेड। तो हाँ, अभी हम स्टॉप कर रहे हैं। अब हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे। Vastu remedies and corrections for your home. Vastu and Feng Shui have nothing to do with religion. They are the science of balancing the five elements, that is earth, fire, water, space, and air, to attain maximum benefits out of life. If your house or workplace is violating any principle of Vastu, that is a Vastu dosh. A Vastu dosh can be corrected through simple Feng Shui principles. Here's more. An aquarium in the Feng Shui living room can be a source of enjoyment and relaxation. You can sit back and watch as another world comes to life right before your eyes. But did you know that if you placed a fish tank or aquarium in the southeast of your living room, you will attract wealth and abundance in your home? Lush green plants can fill the bare, lonely corner of your Feng Shui living room with life and vitality. Lush green plants in the southeast of living room will bring you wealth and abundance. In the south, they bring you fame and good recognition, luck. Green plants in the east will bring you good health and vitality. The humble clock, when incorporated creatively, can be elevated to centerpiece status in a room. A unique, oversized clock serves as an art. A small wall clock gains importance when surrounded by a larger picture frame. If you have a clock with a pendulum, place it in the northwest of the living room. That will bring you good travel luck and help from mentors, friends, and heaven. Do not place a clock near a dining table. Air and light. Have good quality air and good quality light in your house. These two elements are essential for good Feng Shui energy, called Qi, in your home. Open the windows often, introduce Feng Shui air purifying plants, or use an air purifier. Allow as much natural light as possible into your home and consider using full spectrum lights. Have
many happy images of your family throughout the house, especially in the kitchen, living room, and the east area of your house. Use green in abundance. The feng shui color of growth and healing, green can be freely used in east, southeast, and south feng shui bad areas of your home or office, and south feng shui backward areas of your home or office. It is best to avoid a strong color green presence in the north back area of your house. In the north backward area of your house. Candles. Candles invoke the energy of purification and inspiration. They warm up the energy and help release daily stress. Candles are best used in the feng shui areas of south, southwest, northeast, and center. When using candles as feng shui cures, be mindful about their colors as well as the candle holder material or element. If you enjoyed watching our video, तो आप सभी ने ये सीखा आप सभी ने ये सीखा इस वीडियो में कि वास्तुशास्त्र किस चीज से मिला और हम क्या क्या चीजें रख सकते हैं कि वास्तुशास्त्र में वो अच्छा लगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप ये आप लोग चाहें तो ये देख सकते हैं कि आपके मोबाइल में आपका एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का एक कंपास होता है, वो आप सभी खोल सकते हैं 1 मिनट के लिए। मोबाइल एप्लीकेशंस में जाइए, उसमें टूल्स होगा, टूल्स, उसमें आप जब जाएंगे तो वहां पे आपको आपका कंपास दिखेगा, उस कंपास को आपको खोल लेना है। तो आप आशा करती हूँ आप सबने खोल लिया होगा। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब उस कंपास में अगर आप ध्यान दीजिए तो नॉर्थ, साउथ और ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी सिखाया था। अब इसमें क्या है, जो नॉर्थ डायरेक्शन दैट इज स्पेस। अगर आप अपने इंडिया का मैप भी देखिए तो जो ऊपर है नॉर्थ, ईस्ट साइड में आपके हिमालयास, साउथ में आपका नीचे वाला पार्ट और वेस्ट में आपका गुजरात वाला पार्ट। तो ये आपका स्पेस हो गया नॉर्थ साउथ में। ईस्ट साइड में आपका अर्थ, हिमालयास को डिपिक्ट करता है। नीचे अगर साउथ साइड में जाइए तो ज्यादातर पानी है। आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं कि नीचे वाले साइड में आपको ज्यादातर पानी दिखेगा, ये सराउंडेड बाय वाटर। तो साउथ ईस्ट और साउथ साइड में आपको वाटर दिखेगा। फिर जब साउथ वेस्ट में हम जाते हैं और वेस्ट में जब जाएंगे तो एयर, तो हमारी मोस्टली जो इंडिया की एयर चलती है वो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट चलती है। अगर आप कभी ध्यान दीजिए क्योंकि नीचे पानी है, तो पानी से होते हुए एयर हिमालय तक जाती है। इस तरीके से हमारी जो एयर है वो वेस्टर्लीज कहलाती है। सो दिस इज द डायरेक्शन यू कैन लर्न: स्पेस, अर्थ, फायर, वाटर एंड एयर। सो ये है बेसिक्स प्रिंसिपल जो आपकी बॉडी को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं और बेटर लाइफ देते हैं। अगर हम हार्मोनी की बात करते हैं एनर्जीज में, तो हमारा क्या होता है, क्यों वास्तुशास्त्र फॉलो करना चाहिए? आप लोगों में से बहुत लोगों को स्ट्रेस होता होगा, टेंशन होती होगी, तबीयत खराब रहती होगी, पीस ऑफ माइंड अच्छा नहीं होता होगा। ये सारी एनर्जीज ये हमें एक इक्विलिब्रियम स्टेज में लाती है। इक्विलिब्रियम मतलब वेयर वी कैन हैव अ पीस, एक इक्वल वे में। फिर उसके बाद और हाँ, इसमें हम लोग को हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस सब कुछ मिलता है। हेल्थ मतलब तबीयत, वेल्थ मतलब पैसा, हैप्पीनेस मतलब खुशी, प्रॉस्पेरिटी और सक्सेस मतलब आगे बढ़ने की चाहत, आगे आपको आगे बढ़ाता है।
तो अब हम ये है हमारे वास्तु पुरुष और ये हमारे डायरेक्शन को बता रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट को हम लोग ईशान कोण कहते हैं। ईस्ट, ईशान मतलब कुबेर का स्थान। ईस्ट को हम लोग पूर्वाग्रह कहते हैं। साउथ इज अग्नि, दक्षिण, वेस्ट इज पश्चिम, पूरब पश्चिम आपने सुना होगा, सूरज पूरब से उगता है और पश्चिम में ढलता है। तो पूरब मतलब ईस्ट, पश्चिम मतलब साउथ, और उत्तर मतलब नॉर्थ, और साउथ मतलब दक्षिण। उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण मतलब ऊपर नीचे, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। पूरब मतलब ईस्ट, पश्चिम मतलब साउथ। अब हम लोग की एलिमेंट्स क्या है? जब हम लोग सोलर की बात करते हैं, मतलब सन की बात करते हैं, तो देयर इज अ फायर। जब हम लोग विंड की बात करते हैं, दैट इज अ एयर। जब हम लोग रेन की बात करते हैं, दैट इंक्लूड्स वाटर। जब हम लोग ग्रेविटेशनल पुल की बात करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, दैट इंक्लूड्स अर्थ। और जब हम लोग आवाज, साउंड की बात करते हैं, वो होता है स्पेस। अब हम लोग और गहराई में जा रहे हैं। 5 एलिमेंट्स आप लोग ने पढ़ा, वो किससे रेजोनेट कर रहे हैं? फायर सोलर, एयर विंड, वाटर रेन, अर्थ ग्रेविटेशनल मैग्नेटिक, एंड स्पेस साउंड। ये हमारे ह्यूमन बॉडी है। इस ह्यूमन बॉडी में आप चक्रास देख रहे होंगे। तो अगर हम फिजिकल बात करें, तो सबसे नीचे होता है हमारा अर्थ, फिर वाटर, बीच में फायर, बीच में एयर, देन स्पेस, फिर माइंड, एंड देन लाइफ। इसको हम दूसरे वे में बात करें तो लाइफ हमारी सहस्त्र चक्रास कहा जाता है। माइंड को हम अजना चक्र कहते हैं। फिर एयर अनंत चक्र, फायर मणिपुर चक्र, वाटर स्वाधिष्ठान चक्र, और अर्थ मूलधारा चक्र। अब ये है हमारा घर। इस घर में मान लीजिए आपका स्क्वायर प्लॉट है। ये एक प्लेसमेंट बताया गया है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के अकॉर्डिंग। नॉर्थ और ईस्ट में हम लोग ने, नॉर्थ ईस्ट में वाटर होता है। ईस्ट और साउथ साइड में हम फायर कहते हैं, साउथ ईस्ट में। साउथ से वेस्ट में हम अर्थ कहा जाता है, और नॉर्थ और वेस्ट में हवा, दैट इज एयर। अब हम इसे याद कैसे करें? आप ऐसे समझिए कि ये आपका एक मैप है। अर्थ मतलब मैप हमारे इंडिया का। नॉर्थ मतलब ऊपर जम्मू, साउथ मतलब नीचे पानी, ईस्ट मतलब इधर आपका, इधर आ जाएगा जहाँ पे लंबा हुआ खुला हुआ रास्ता है, और वेस्ट मतलब गुजरात। तो हम ये कह सकते हैं कि पानी बरस रहा है हिमालय से, दैट इज नॉर्थ ईस्ट। तो वाटर आ रहा है। ईस्ट और साउथ, जब भी सूरज आपका उगता है तो साउथ डायरेक्शन से होते हुए वेस्ट में जाता है, इसलिए हम ईस्ट और साउथ को फायर कहते हैं। और जब फायर में जाता है और जब वेस्ट तक पहुंचता है तो क्या होता है? ठंडा हो जाता है, दैट इज अर्थ। फिर वेस्ट और नॉर्थ में, नॉर्थ और वेस्ट की बात करें तो आप ये कह सकते हैं कि वेस्ट साइड से हमारी हवाएं आती हैं, तो दैट इज द एयर। और बीच में हमने स्पेस कहा है। ओके, तो दैट इज द मेन थिंग कि कैसे हम वाटर, एयर, अर्थ और फायर को हम यहाँ पे रेजोनेट कर रहे हैं। आप इसमें से कोई भी एक्टिविटी आप घर में परफॉर्म कर सकते हो। नॉर्थ इज असाइन टू वाटर, नॉर्थ ईस्ट जैसे कि हम देख रहे हैं वाटर, वही चीज मैंने बस लिखा है यहाँ पे। नॉर्थ ईस्ट वाटर को कहा जाता है, साउथ ईस्ट फायर को, नॉर्थ वेस्ट एयर को। अब क्यों है ये? फायर मतलब हैव अ बोरवेल। आप जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट है वहां पे आप कुआं लगा सकते, बोरवेल लगा सकते हो, वाटर टैंक लगा सकते हो। साउथ ईस्ट जहाँ पे आप, वहां पे किचन बना सकते हो, पैंट्री बना सकते हो, बॉयलर लगा सकते हो। जहाँ पे नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट मतलब जहाँ एयर है, देयर यू कैन हैव अ गेस्ट रूम, बेडरूम, अनमैरिड गर्ल्स के लिए, और या फिर फिनिश गुड्स।
साउथ वेस्ट मतलब नीचे, नीचे की साइड में अर्थ, जहाँ मैंने बात की थी। इट इज द मोस्ट स्टेबल ऑफ ऑल द एलिमेंट, इट कीप इट हैवी एंड दिस इज द बेस्ट वे फॉर द मास्टर बेडरूम। तो इस साइड में हम लोग मास्टर बेडरूम प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स क्या करते हैं, रेजोनेट करते हैं। और जो सेंटर की होती है, वहां पे आपको कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा खाली स्पेस हो, लीस्ट पॉसिबल एक्टिविटी इन दिस एरिया। स्पेस मतलब खालीपन, तो हमें यहाँ पे खालीपन रखना है। ये थोड़ा सा और डिटेल में है, लाइक नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है। तो नॉर्थ, क्योंकि हमने कुबेर का स्थान कहा था, और नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जाना मतलब सूरज यहाँ से उग रहा है, तो यहाँ पे आपको प्रॉस्पेरिटी, आप इस मैप में देखिए, नॉर्थ में हमारे ये सारी चीजें, रिलीजन एंड फेथ। फिर ईस्ट डायरेक्शन में हम एजुकेशन रूम, लेबर रूम, रूम, इस तरीके की चीजें रख सकते हैं। तो साउथ से वेस्ट मतलब कौन सा एरिया था, साउथ से वेस्ट की ओर आपका अर्थ एरिया था। तो अर्थ में हम लोग हेड लेडी, पावर एंड सेल्फ इसमें रख सकते हैं। और नॉर्थ से वेस्ट में आपका एयर था, इसमें हम लोग इन्फ्लुएंसेस ऑफ फीमेल रिलेशनशिप, मतलब ऐसी जगह जो मैरिड लड़कियां, मैरिड लड़की हैं, इस तरीके की चीज को हम रख सकते हैं। यहाँ पे आपको पास पैसे बहुत आते हैं, क्योंकि ये नॉर्थ वेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की। नॉर्थ कुबेर बता ही चुके हैं, ईशान कोण सन इंद्री, जहाँ सूरज उग रहा है। साउथ ईस्ट मतलब अग्नि है, जहाँ पे ईस्ट से वेस्ट में जाता है, तो सबसे ज्यादा मतलब हमें गर्म यहाँ मिलता है, यम और वरुण अर्थ। फिर वेस्ट से नॉर्थ आपका एयर, दैट इज वायु। तो ये सब चीजें क्यों, आपने देखा होगा कि अभी तूफान आया मुंबई में, इवन आपके इंदौर में भी आने वाला है। तो ये सब क्या है, फ्लड, टाइफून, साइक्लोन एंड सो ऑन, ये सब क्या है, इम्बैलेंसेस होती हैं। इसी तरीके से जो इम्बैलेंसेस होते हैं, ये हमारे खान पीन में भी अंतर करते हैं। जो खाना हम लोग खाते हैं, अगर हमारी डाइट बैलेंस नहीं होगी, तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, हम लोग अच्छा नहीं लगेगा। एंड देयर इज सम एक्सेस ऑफ दीज एलिमेंट्स इन आवर डाइट, जैसे कि आग, चिली, हम लोग चिलीज खाते हैं, ये खाते हैं, ये सारी चीजें क्या है, आग लगाती हैं। यू कैन सी इन दिस डायग्राम, यहाँ पे क्या है, गैस बन रही है, एसिडिटी हो रही है, तो ये आदमी को क्या हुआ, गैस बन के पेट फूल गया। तो ये क्या है, एक्सेस ऑफ एलिमेंट्स इन द डाइट है, जो आग आग का काम करते हैं। तो लाइफ वाइज इसके इम्बैलेंसेस में हम क्रिएट करते हैं डिस्कम्फर्ट, विच वी डू नॉट फील फिजिकली बट एक्सपीरियंस मेंटली। ये सारे क्या है, चक्रास हैं जो हमारे डिस्टर्ब हो चुके हैं। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से चक्रास अनस्टेबल है। अगर आपको थ्रोट प्रॉब्लम है, ये सारी चीजें आपकी इसमें आती हैं। आपको अभी क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा वास्तु पुरुष था क्या। तो वास्तु पुरुष इज प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी प्लॉट वेयर इट इज बिग और स्मॉल। He has a fixed and peculiar body. His head remains hanging down and his body is spread all over the length and breadth of the ground. This is storing interesting story theme Mathyapuri, in which the birth of Vastu Purush is narrated. आप इसको सुन के आप समझ सकते हैं, ये है हमारा वास्तु पुरुष। ये देखिए वास्तु पुरुष है नॉर्थ ईस्ट साउथ एंड वेस्ट। जैसा कि हम लोग ने कहा था, नॉर्थ ईस्ट ईस्ट है, ये नॉर्थ है। तो नॉर्थ को हमने स्पेस दिखाया, ईस्ट को आग दिखाया, साउथ में हमने अर्थ दिखाया, और इधर पे हमने एयर दिखाया। इसी तरीके से ये सारे हमारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। हमने 5 एलिमेंट्स की बात की थी, उनको पंच महाभूत कहा था, ये सारी चीजें हैं। और डिटेल में अगर आपको जानना है अर्थ क्या है, मीन्स कंपोजिशन ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ,
मतलब सॉइल से जो चीज बना है लाइक स्टोन, सैंड, आयरन, एलाइन, ये सारे मटेरियल्स हैं जो आप अर्थ में यूज कर सकते हो, क्योंकि सॉइल का एक टेस्ट होता है। फिर आपका वास्तु पुरुष में भूमि पूजन आता है। वास्तु शास्त्र में अबाउट द साइज एंड टाइप ऑफ लैंड हम लोग भूमि पूजन करते हैं, हमें वो करते हैं अर्थ, मिट्टी, पानी। पानी अगर आप ध्यान करिए तो 3/4 हमारा जो अर्थ है, water forms 3/4 of parts of body weight. So it should be ensured before house construction whether water will remain available or not. तो हमें ये एक नॉर्मल जानकारी जो हमें ध्यान रखना चाहिए। पानी देख सकते हैं, ये हमारा घर है, उसके चारों तरफ देखो किस तरीके से पानी है। आग, हमारा जो अर्थ है एनर्जी सर्कुलेट करता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट। तो जो सूरज है हमारा मेन सोर्स ऑफ लाइट है, तो हमें इसका ध्यान रखना चाहिए जब भी हम घर बनाएं या घर का जो वेंटिलेशन है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट उधर से आए। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान करिए कि हम लोग ऐसे स्पेसेस जहाँ पे लाइट की ज्यादा जरूरत है, उस स्पेस को हम लोग साउथ ईस्ट में रख सकते हैं, जहाँ पे हमें लगता है कि लाइट की ज्यादा जरूरत है। फायर, आग लग गई। अब हम एयर की बात करते हैं। एयर, सॉरी, अभी हम फायर की बात कर रहे थे, इस तरीके से आग बताती है। एयर की अगर हम बात करते हैं तो ये कि एक एसेंशियल एलिमेंट है ऑल लिविंग बीइंग्स का। इसमें हम करेक्ट सप्लाई देते हैं, करेक्ट टेम्परेचर देते हैं, करेक्ट प्रेशर डालते हैं, करेक्ट परसेंटेज देते हैं, जो हमारे एयर को डिपिक्ट करती है। एयर जो है हमारे फिजिकल और मेंटल वेलबींग के लिए भी जरूरी है। अगर हम शेप, साइज, कंस्ट्रक्शन, डायरेक्शन इन सब की बात करें तो हमें सफिशिएंट सप्लाई मिलती है एयर में। तो जो हमारी बिल्डिंग है उसको एयर की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी एयर की जो एयर है हमें प्रॉपर एयर मिले, प्रॉपर वेंटिलेशन मिले, लाइक लिविंग रूम, आपका लिविंग रूम है या जहाँ पे आपको एयर की ज्यादा जरूरत है, तो इसकी जब भी आप कोई भी डायरेक्शन बनाए या घर बनाए या अपने घर को डेकोरेट करें, ये ध्यान में रखें कि प्रॉपर एयर हर तरफ, हर जगह से आनी चाहिए। अगर आप ये घर देखिए तो इस घर में जो एयर है हमने ऊपर की तरफ वेंटिलेशन दे रखा है छत की तरफ से, तो यहाँ पे हमारी एयर भी आ रही है और सूरज भी आ रहा है। और अगर हम इधर देखें तो इस साइड से एयर निकलती है, जमीन से होती है, फिर जो ऊपर गर्म वाला स्थान है उसको फिर से ऊपर करके इधर से निकल जा रही है। एक तरीके से ये बैलेंस कर रहा है, जो गर्म है उसको ठंडा कर रहा है, जो ठंडा है उसे गर्म कर रहा है। सो दिस इज अ कंप्लीट साइकिल यू कैन लर्न हियर। अब हम पांचवें एलिमेंट की बात कर रहे हैं, स्पेस। ये सबसे ज्यादा वाइडली स्प्रेड होता है, बेसिक एलिमेंट है जो हमारे हेवली बॉडीज में काम आता है। अब हम लोग स्पेस की अगर बात करें, स्पेस क्या है? खाली स्थान जो ग्रेविटेशनल पुल, मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करता है, हेवनली बॉडीज को अट्रैक्ट करता है। अरे, तो जो हमारा स्पेस है उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज और डिजाइन आती है हमारी लाइफ में। हाउसेस को हमें इस तरीके से बिल्ड करना चाहिए कि उसमें नेचर को और एनर्जी को लेकर बात की जाए। तो हमारा जो हाउस होता है उसमें हम लोग स्पेस बीच में मानते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा हमें खाली स्थान, वहां पे एक्टिविटीज कम होनी चाहिए, हमें खाली छोड़ना चाहिए। और वो क्या होता है, सेंटर में होता है, जैसे कि मैंने डिस्कस किया। तो ये जितने भी 5 एलिमेंट्स आपने आज जाने, इन सब का एक बेसिक मतलब होता है जो हम लोग वास्तुशास्त्र में ध्यान रखते हैं, जो हमें अपने घरों में अप्लाई करना चाहिए और जो हमारे घर में बहुत अच्छे से होता है। अब हम लोग डायरेक्शन के बारे में जान ही लिए हैं।
तो एक है, अगर आप अपने सेंटर ऑफ द प्लॉट में खड़े रहिए और अपना जो सर है उसको सन सूरज की तरफ आप रखिए। अपना जो मतलब अपना जो फेस है जहाँ से सूरज उग रहा है दैट इज ईस्ट डायरेक्शन में रखिए। तो आप अगर ध्यान देंगे तो वो ईस्ट डायरेक्शन है, जहाँ से भी सूरज उगेगा वो ईस्ट डायरेक्शन है। उसके बाद आपको अपना हाथ फैलाना है अपने शोल्डर लेंथ में, और इट इज नाउ नाउ पॉइंटिंग टूवर्ड्स नॉर्थ। और जब आप अपना हाथ फैलाएंगे तो आपका एक हाथ नॉर्थ की तरफ होगा, जो आपका लेफ्ट हाथ है, जो आपका लेफ्ट हाथ है। तो हम क्या पढ़ रहे थे कि अगर आप अपना फेस जो है सूरज जहाँ से उगता है वहां पे रखिए और अपना लेफ्ट आर्म को अगर फैलाइए, तो जो लेफ्ट है आपका दैट इज बायां आपका हाथ, वो नॉर्थ डायरेक्शन में होगा। अब अपना राइट हैंड अप करिए और तो वो क्या होगा, साउथ डायरेक्शन में दिखाएगा। और जो आपकी पीठ है वो क्या दिखाएगी, वेस्ट। तो क्या करना है, अपने आप को वहां रखना है जहाँ सूरज की डायरेक्शन है, और अपना लेफ्ट हैंड अगर फैलाएंगे तो नॉर्थ होगा, राइट हैंड फैलाएंगे तो साउथ होगा, और आपकी पीठ जो होगी वेस्ट को दर्शाएगी। तो ये एक तरीका है जानने का। ये आप देख सकते हैं कि कैसे ये सूरज की तरफ देख रही है तो दैट इज ईस्ट। जब लेफ्ट हाथ फैलाएंगे तो नॉर्थ, राइट तो साउथ, और पीछे आपका बैक। अब हम लोग कंपास की बात करेंगे। अगर हम कंपास की बात करें, अगर आप 6 इंच बाय 6 इंच का एक एरिया साफ करिए सेंटर में, और उसके बाद उस कंपास को वहां रखिए। यू विल फाइंड दैट कंपास हैज अ नीडल एट द सेंटर, वन एंड ऑफ विच इज मार्क्ड इन रेड। उसका एक एंड रेड में मार्क होता है और नीडल से ऑसिलेट करती है वाइल में, और बाकी सारी नीडल जो है रेस्ट करती हैं। ये देखिए आपका कंपास है। हाउ टू यूज नॉर्थ कंपास। सो अभी हम नाउ स्लोली टर्न द कंपास सो दैट लेटर मार्क विथ एन लाइज राइट below the red marked needle. Now the needle is exactly aligned on the north-south axis that the red mark and end points to the magnetic north. तो अभी हम एक वीडियो देखेंगे इसके ऊपर कि कैसे ये हमारा वर्क करता है। अब आप लोग अपना जो हमने लेआउट कल कहा था आप लोग से करने के लिए, आप चाहें तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं ये नॉर्थ वाला। तो हम एक इसको वीडियो देखते हैं हम।
अब जैसे कि आप देख सकते हैं, इस पूरे डायरेक्शंस में हमने नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट कहा है। अब वास्तु के अकॉर्डिंग जो नॉर्थ और ईस्ट है, मतलब सूरज यहाँ से उग रहा है, वेस्ट में ढल रहा है, तो नॉर्थ साउथ ईस्ट आपका अग्नि है, कोण है। नॉर्थ आपका कुबेर था, दैट इज स्पेस। यहाँ आपका साउथ वेस्ट में हम लोगों ने किसको माना था, अर्थ। यहाँ पे एयर, और नॉर्थ ईस्ट वाला यानी पानी का स्थान। तो ये जो पीछे की चीजें थी उसको आप थोड़ा रेजोनेट भी कर सकते हो कि किस तरीके से ये सारी चीजें आपके वास्तु की डायरेक्शन में और किस तरीके से आपको हेल्प कर रही हैं। नाउ आई विल कंटिन्यू विद दिस वीडियो ओनली। कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इन 8 दिशाओं को आगे 16 यानी कि 16 रही। अगर आप लोगों को इसका सेंटर डायरेक्शन निकालना है, तो आप क्या करोगे, जो भी आपका रेक्टेंगल है या जो भी आपका स्क्वायर है, उसके कॉर्नर से दो लाइन खींचेंगे आप लोग। और जब आप लोग दो लाइन खींचेंगे तो सेंटर में आपका सेंटर वाला प्लॉट निकल आएगा। कुछ नहीं करना है, जो भी आपका लेआउट है उसको स्क्वायर या रेक्टेंगल में एंक्लोज करना है, और उसके कॉर्नर से, एडजेसेंट कॉर्नर से बीच में लाइन खींचनी है, मतलब क्रॉस बनाना है। जो क्रॉस की बीच की पॉइंट की लाइन जहां मीट करे, दैट इज द सेंटर ऑफ द प्लॉट। तो आप लोगों ने सीखा इस वीडियो में कि कैसे हम नॉर्थ को मार्क कर सकते हैं, और कैसे अगर आप उस सेंटर में, अगर आप बाजार से एक नीडल ले आए और सेंटर, या फिर आप अपना मोबाइल यूज कर सकते हो, आपको क्या करना है, अपने कोशिश करना है कि आप अपने घर के किसी एक सेंटर स्थान में खड़े रहिए, और वहां पे आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन मिल जाएगी कि किस साइड में आपका नॉर्थ है, किस साइड में ईस्ट है, किस साइड में वेस्ट है, और किस साइड में साउथ है। आपको जो बेसिक डायग्राम था उसकी स्क्रीनशॉट हम स्क्रीन आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देंगे, तो आपको समझ में आएगा कि हमारा नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट के हिसाब से हमें कहाँ पे क्या प्लेसिंग करनी चाहिए। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे जैसे आपने मतलब सीखा इन डायरेक्शन के बारे में, ये 8 प्रिंसिपल जैसा कि उसमें बताया गया था। ये है आपका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अब नॉर्थ को हम और रूप में जाने तो नॉर्थ में हमारी, क्योंकि स्पेस को कहा गया है
तो उस साइड में थिंकिंग आपकी ज़्यादा तेज होती है। साउथ में हम सोल सोल को मानते हैं, वहाँ पे आप पेड़ों को रख सकते हो। ईस्ट, जहाँ पे आग होती है, अवेयरनेस फैलती है। अब इसको कैसे समझेंगे? आपका हाथ है, हाथ में अगर आपको आग लगती है, तो आपको महसूस होता है, और जैसे ही महसूस होता है, आप कहीं ना कहीं भागने लगते हो या हाथ हटा लेते हो तुरंत। तो क्या होता है? अवेयरनेस फैलती है। दैट्स वाई ईस्ट को अवेयरनेस के लिए कहा गया है। तो आप अपना स्टडी रूम या ऐसा रूम जहाँ पे आपको लाइट की ज्यादा जरूरत है, वो ईस्ट साइड में रख सकते हो। फिर आपको, अगर हम वेस्ट की बात करें, विलिंगनेस, दैट इज स्टोन। अब शाम को क्या होता है? सूरज ढल जाता है। सूरज ढलने के बाद हमारा मन करता है कहीं बाहर घूमने का, क्योंकि जब धूप रहती तब तो आपका मन करता नहीं है कहीं जाने का। तो जब बेस्ट होता है साउथ में, तो हमें विलिंगनेस पैदा होती है कि अब हमें ये काम कर लेना चाहिए। तो जहाँ आपका थिंकिंग और विलिंगनेस वाले काम है, आप यहाँ पे कर सकते हो। फिर अब हम बात करते हैं नॉर्थ और पहले ईस्ट की। नॉर्थ और ईस्ट मतलब सेंसिंग, जहाँ पे आपकी थिंकिंग और अवेयरनेस का बीच में आता है, आप सेंस कर सकते हो चीजों को कि ये क्या है। तो जहाँ पे आपका ऐसा कुछ हो, लाइक योर स्टडी रूम, और लाइक जहाँ पे आपके थिंकिंग और सेंसेस काम करें, तो यू कैन यूज नॉर्थ ईस्ट। जहाँ पे आप पूजा करते हो, अवेयरनेस और सोल, क्योंकि साउथ को सोल माना गया है और ईस्ट को फायर, फायर और सोल का मिक्सचर है। तो यहाँ पे क्या होगा? बीच में स्पिरिट। स्पिरिट मतलब एक तरीके से आप मतलब भगवान कह सकते हो, एंसेस्टर्स, मतलब जो भी आपका, आपके जहाँ पे पूजा करने वाली सामग्री है, वो वहाँ पे आप लोग के लिए साउथ ईस्ट सबसे ज्यादा अच्छा होगा। और जहाँ पे आप नेचर से रिलेटेड कोई पूजा करते हो, वो या नेचर से रिलेटेड कोई भी चीज करते हो, तो वो आप कर सकते हो आपका साउथ वेस्ट में। क्यों? क्योंकि आपका स्टोन जो है विलिंगनेस को मतलब दर्शाता है, मतलब साउथ साउथ आपका वेस्ट साइड। और आप साउथ में ज्यादातर पेड़ों को रखते हो, तो यहाँ पे आपकी बॉडी काम करती है। तो जहाँ पे लाइक एक्सरसाइज है, जिम है, ऐसा कुछ चीज है, तो वहां पे आप साउथ वेस्ट में रखो, तो आपकी चीजें और अच्छी होंगी। आप अपना बेडरूम जो है नॉर्थ वेस्ट में रख सकते हो, जहाँ पे मतलब फीलिंग्स की प्राथमिकता होती है, जहाँ पे फीलिंग्स जनरेट करना है। तो इन सबको ध्यान में रख के आप अपनी चीजों को प्लेस कर सकते हो। दिस इज वन डायग्राम जहाँ पे एक सेंटर मार्क किया गया है। एक रेक्टेंगल है, उसके कॉर्नर्स कट करते हुए और उसके बीच से कट करते हुए ये सेंटर निकला है। फिर से वही सेम चीज है। नॉर्थ है आपका उत्तर, दैट इज एयर वाटर। फिर ईशान कोण, जैसा कहा था, पानी। ईस्ट जहाँ पे सूरज उगता है। अग्नि कोण मतलब साउथ वेस्ट, आपका साउथ। फायर, आग, अर्थ जहाँ होती है, जैसा कि मैंने बताया सूरज उग रहा है तो यहाँ से जा रहा है तो अर्थ। इस साइड में टोटल अर्थ होता है, साउथ आपका वेस्ट में। और वेस्ट साइड में आपका पश्चिम होता है, जहाँ से हवाएं चलती हैं। तो एयर और अर्थ यूज कर सकते हो आप लोग। दिस इज अगेन कुबेर, यम। साउथ मतलब यम, यम का स्थान माना गया है। कुबेर, नॉर्थ ईस्ट सदावया। ईस्ट मतलब इंद्र, जहाँ से सूरज उग रहा है। बीच ब्रह्मा मतलब स्पेस, स्पेस को माना गया है। एयर विंग मतलब एयर विंग। वेस्ट मतलब वरुण, वरुण मतलब हवा। और साउथ वेस्ट मतलब जहाँ पे अर्थ हो, और यहाँ पे आग की बात की गई है। तो ये सारे अभी तक हमने एलिमेंट्स की बात की। तो अब इसको और डिटेल में अगर आप लोग पढ़ना चाहें, तो ईस्ट डायरेक्शन आपका इंद्र को दर्शाता है। इसमें शिव, जयंत, इंद्र, सन, सूरज, आकाश, इस मतलब ये 9 एलिमेंट्स की बात की गई है। ये लॉर्ड इंद्र ईस्ट डायरेक्शन के होते हैं। तो इसमें जो डायरेक्शन की बात की थी हमने ईस्ट से रिलेटेड, ईस्ट सन, अग्नि वीनस, साउथ साइड मार्स, ईशान जुपिटर। तो ये सारे
भगवान है जो आप, या मतलब डेथ से रिलेटेड कोई भी जो बॉडी होती है, कभी भी आपको अपना जो चेहरा है, आपका सर है, कभी साउथ साइड करके नहीं सोना है। जब भी आप अपना अपना सर रखें, हमेशा नॉर्थ साइड रखें, या ईस्ट या वेस्ट साइड भी रख सकते हैं, बट साउथ साइड नहीं रखना है, क्योंकि साउथ साइड मतलब हम लोग मानते हैं यम का स्थान होता है। तो इसलिए कभी भी आपको सर अपना साउथ साइड नहीं करना है। और और कुबेर, धन वन की जितनी भी चीजें हम नॉर्थ साइड में अगर रखेंगे, या पानी रखेंगे, या कहते हैं बुद्धा रखेंगे, तो ये सारी चीजें आपके कुबेर को अट्रैक्ट करती हैं। कुछ भी पानी वहां रखे रहना, या कुछ भी विंड चाइम्स लगाना, मतलब साउंड के लिए, जैसा कि मतलब हमारा पूरा बात हुई थी। वेस्ट डायरेक्शन की बात करें तो ये वरुण का है, जहाँ पे पानी बरसता है। तो इसमें वेस्ट डायरेक्शन में क्या है, हमारा अ, ये सारी चीजें चली जाती हैं, डिसीज चली जाती है, सेंट चले जाते हैं। तो ये सारी चीजें इसमें बात की गई है। लॉर्ड वरुण को कहा गया है, ही हैज द पावर ऑफ रेन एंड वाटर। तो रेन, आप लोग और डिटेल में अगर आप गूगल भी करें तो रेन और वाटर से जो चीजें हटती हैं, उस तरीके की चीजें आप वहां पे रख सकते हो। नॉर्थ डायरेक्शन हम लोग कुबेर का स्थान मानते हैं। तो जितना भी आपका वेल्थ है, प्रॉस्पेरिटी वाली चीजें आप वहां पे स्थान कर सकते हो। साउथ की बात करें तो ये यम का स्थान है, दैट इज द, यम मीन्स डेथ। यम भगवान है, लॉर्ड यम, जो डेथ को दर्शाता है। तो यहाँ पे क्या है, हमें कोई भी अपनी ऑस्पिशियस चीज साउथ डायरेक्शन में कभी नहीं रखनी है, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि जो साउथ डायरेक्शन इज मोस्टली डेड। ये ध्यान में रखना है आपको। इसमें देखिए ये भी कहा गया है कि मतलब आप बेडरूम वगैरह रख सकती हो, लेकिन उसके जो बेड की डायरेक्शन होगी वो कभी भी साउथ डायरेक्शन में नहीं होनी चाहिए। ओके, मतलब आपका जो सर का सिरहाना है वो कभी साउथ डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। और इसलिए साउथ डायरेक्शन में हम लोग बैंड किए हैं कि कोई ऑस्पिशियस फंक्शंस हमें कभी नहीं करनी चाहिए। कभी भी कोई फंक्शन है, कभी भी कोई ऐसी चीज है या पूजा से रिलेटेड कोई भी साउथ साइड में नहीं होनी चाहिए। इट कैन बी डन इन नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, इसमें हो सकती है, बट साउथ में नहीं रखनी है, बिकॉज ये यम का स्थान है। तो हमें इसका भी ध्यान रखना चाहिए। फिर हम इसकी बात करते हैं, साउथ और ईस्ट डायरेक्शन की बात करते हैं, तो आप किचन वहां रख सकते हो, क्योंकि ईस्ट आपका क्या है, सूरज वहां से उग रहा है और साउथ से होता हुआ जा रहा है, तो आपको सबसे ज्यादा जो लाइट होती है वो साउथ ईस्ट में आती है। और किचन को ऐसा माना जाता है कि हमें भूख बहुत लगती है, तो इसलिए अगर आप किचन को उस साइड में रखोगे साउथ ईस्ट में, तो जो अग्नि है, कोण है वहां पे, क्योंकि आग जलाई जाती है किचन में, तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आप अपना किचन प्लेस करो। साउथ वेस्ट की अगर बात करें तो ये कॉर्नर का प्लॉट होता है साउथ वेस्ट, जहाँ पे हम लोग अर्थ को मानते हैं। और इसमें नैऋत्य डोमिनेंस को कहा गया है। यहाँ पे आप कुछ भी गड्ढा, वेल्स, ये जितने भी हैं, द डायरेक्शन शुड बी फिल्ड विथ हैवी अनमूवेबल गुड पेट्स, वेलनेस अपकी टैंक्स, वाटर स्टोरेज टैंक। जो आपके टॉयलेट्स है वो हमेशा आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रख सकते हो, क्योंकि ये अर्थ साइड में है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जितने भी क्रूअल फोर्सेस हैं आर कंटामिनेटेड और गेट डिजोल्व इन द पिट्स। तो वो सब क्या है, जितनी भी क्रूअल चीजें होती हैं वो गड्ढे में चली जाती हैं, वो मर्ज मतलब उस गड्ढे में जाके समा जाती हैं। तो इस वजह से हमें टॉयलेट, पिट्स, वेल, सेप्टिक टैंक्स, ये सारी, सॉरी, साउथ वेस्ट मतलब अर्थ साइड है। तो सॉरी, ये सब नहीं होना चाहिए, टॉयलेट्स और सेप्टिक टैंक्स और ये सारी चीजें हैं, वो आपको नॉर्थ वेस्ट में रखना है, वो वाटरी साइड है, अर्थ में नहीं।
क्योंकि पानी वहां से जाता है, इसलिए अ, आपको कुछ भी कुआं, वेल, ये सब नहीं रखनी है। पिट्स, वेल्स नोन होते हैं पानी के लिए। पानी वहां आ रहा है तो पानी हमेशा आपका इधर आता है, नॉर्थ और वेस्ट में। इसमें भी हम साउथ वेस्ट में कोशिश करते हैं कोई भी हम फंक्शन नहीं करेंगे। नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो वरुण कहा जाता है वहां पे, गॉड ऑफ विंड। तो इस स्थान में हम लोग छोटे छोटे पेड़ लगा सकते हैं। और ये है हमारे नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन। और नॉर्थ ईस्ट का जो डायरेक्शन है वहां पे खुद भगवान डिसाइड करते हैं। therefore there should be no construction in this toilet, sundry rooms, wells, और ये सारी चीजें हमें वहां नहीं लगानी है। तो अगर हम बात करें टॉयलेट्स की या सन्ड्री रूम की, इस तरीके नहाने की चीजें, तो हमें पानी के साइड में करना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आप कर सकते हो, क्योंकि उस साइड से हमारा वाटरी एरिया आ रहा है। नॉर्थ ईस्ट में नहीं, आपको हमेशा कोशिश करनी है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में इन सबको प्लेस करना है। ये और थोड़ा डिटेल में है कि ये ब्रह्मा है, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट है। तो अगर आप देखें तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हम लोग ने क्या क्या रखा है। नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट जहाँ पे आपका सूरज आ रहा है। और ईस्ट और साउथ की बात करें तो यहाँ किचन है, ग्राइंडिंग मिल है, चर्निंग कर्ड्स है। और नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो यहाँ पे आप सारी मेडिसिन, रूम ऑफ वर्शिप, ये सारी चीजें रख सकते हो। अगर साउथ वेस्ट की बात करें तो साउथ वेस्ट में, क्योंकि यहाँ विलिंगनेस होती है, इस तरह की चीजें, आप स्टडी रूम भी रख सकते हो, वेपन्स रख सकते हो। नॉर्थ वेस्ट में, वेस्ट क्योंकि हवा वहां से बहुत अच्छी आती है, तो आप अपना डाइनिंग हॉल वहां प्लेस कर सकते हो। रूम फॉर एक्सप्रेसिंग कंडोलेंसेस, बेडरूम रख सकते हो, ट्रेजरी चीजें रख सकते हो, ये सारी चीजें हमारी इसमें आएंगी। और नॉर्थ वेस्ट में ही आप चाहो तो टॉयलेट्स भी प्लेस कर सकते हो, और ईस्ट डायरेक्शन में बाथरूम भी प्लेस कर सकते हो। जैसा कि सनराइज होता है, फॉल होता है, उसी हिसाब से हमारी चीजें भी रखी होनी चाहिए। और ऐसा कहा जाता है कि अगर आप तुलसी अगर रखते हैं अपने घर में और उसकी पूजा करते हैं हमेशा, एक्सेप्ट संडे को छोड़ के, तो आपको बहुत ही अच्छी चीजें मतलब प्राप्त होती हैं। एंड जो भी बिल्डिंग नॉर्थ ईस्ट में हो रही है, मेंटल वरी और इन सब चीजों से हमें बचाती है। ये हमारी कुछ चीजें जो हमें मैंडेटरी करनी चाहिए, जैसे कि पूजा घर हमें करना चाहिए, तुलसी जी लगानी चाहिए। तो ये सब आप लोग ईस्ट डायरेक्शन में कर सकते हो। बाथरूम, क्योंकि वहां पे वाटर फ्लो होता है, इसलिए हम लोग ने इसको नॉर्थ साइड या ईस्ट साइड में रखा है। नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हो। और हम लोग यही कहते हैं कि बाथरूम ईस्ट साइड में बनाओ, क्योंकि वो ओपन प्लेस है। और जहाँ पे आपको अग्नि कोण में जाना है, तो किचन हमारा साउथ ईस्ट में इसलिए कहा गया है कि आप किचन वहां पे रखो जो भी काटनी है। क्योंकि अगर आप फ्रेश ईस्ट में रखते हो, ईस्ट साउथ ईस्ट में रखते हो अपना किचन, तो आपकी जो वेजिटेबल है उनको फ्रेश सूरज की गर्मी मिलेगी और वो फ्रेश हो जाएंगी। तो जो भी आपके कीड़े मकोड़े हैं वो सब मर जाएंगे। ये देखिए एक लेआउट है सिंपल सा। ईस्ट डायरेक्शन में, आप ईस्ट डायरेक्शन में अपना गैस रखो, और सिंक जो है नॉर्थ साइड में हो तो अच्छा है। ये वेस्ट साइड और ये साउथ साइड। ये इसका लेआउट था, और देखिए किस तरीके से इसको बनाया गया है। जहाँ भी आपका गैस है वो आपका ईस्ट डायरेक्शन है, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। लॉन्च, जहाँ लॉन्च की बात होती है वो हमेशा साउथ में होना चाहिए, मिडिल में रख सकते हो, क्योंकि लॉन्च क्या है कि स्पेस है, फ्री स्पेस है। जहाँ पे जैसे कि ड्राइंग रूम हो गया आपका,
तो यहाँ कहा जाता है रेस्ट स्पेस है, यहाँ पे ज्यादा एक्टिविटीज नहीं है, आराम से मस्त अपना ड्राइंग रूम बनाया, लॉन्च बनाया, वेटिंग रूम बनाया, लेकिन यहाँ सोना नहीं है। यहाँ पे आप मतलब थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हो, क्योंकि ये आपको रिलैक्स स्थान लगता है, मिडिल ऑफ द थिंग। ये आपका लॉन्च एरिया हो गया। टॉयलेट की अगर बात करें, तो जैसे जैसे कि आप लोग देखते आए कि अब हमारे घर छोटे होते जा रहे हैं, तो हम लोग टॉयलेट को साउथ डायरेक्शन में कर सकते हैं, क्योंकि साउथ जो होता है आपका बेसिकली आपका यम होता है। तो ठीक साउथ डायरेक्शन में अगर आप करते हैं, तो साउथ से ईस्ट में जब आते हैं, तो या तो ठीक साउथ डायरेक्शन में करिए, या तो आप वेस्ट डायरेक्शन में करिए, साउथ या वेस्ट, लेकिन साउथ वेस्ट में नहीं करना है, ना ही नॉर्थ ईस्ट में करना है। आप पर्टिकुलर उस स्थान पे आप इसको रख सकते हो, दैट इज साउथ में या फिर वेस्ट में, बट साउथ वेस्ट में नहीं रखना है, क्योंकि वो पूरा अर्थ ही एरिया है। और नॉर्थ ईस्ट में क्यों नहीं रखना, क्योंकि वो एयरी एरिया है। नॉर्थ आपका कुबेर स्थान है, वहां पे पानी का भी होता है, और साउथ आपका यम स्थान है। इन सबका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। स्टडी रूम की बात करें, स्टडी रूम आपका बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आप वेस्ट डायरेक्शन में इसको रखते हैं, टुवर्ड साउथ वेस्ट, तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वहाँ पे विलिंगनेस पैदा होती है, वहाँ मन करता है काम करने का। तो इस वजह से आप उस डायरेक्शन में रख सकते हो। ये आपका स्टडी रूम है, जो आप देख सकते हो थोड़ा साउथ वेस्ट में है, जहाँ पे सूरज जब उगता है इस डायरेक्शन से, वेस्ट में आते आते थोड़ा ढल जाता है, तो हमारा मन बहुत लगता है। अब उसमें क्या है, आपकी स्टडी की डिजायर को बढ़ाता है, इंटेलिजेंस को बढ़ाता है, आपके नर्वस सिस्टम को स्ट्रेंथ देता है, आपके वीनस जो है आपकी चीजों को और बढ़ाता है। तो स्टडी रूम हमेशा आपका वास्तु शास्त्र के अकॉर्डिंग हमेशा वेस्ट साइड में होना चाहिए। लेकिन आपको फेसिंग करनी है नॉर्थ ईस्ट की तरफ, या ईस्ट की तरफ अपना मुंह रख सकते हैं, या तो नॉर्थ की तरफ। क्योंकि जब आप ईस्ट की तरफ रखते हैं मुंह, उधर से सूरज आपको दिखेगा, मतलब कि आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, सूरज उग रहा है। नॉर्थ की तरफ इसलिए क्योंकि नॉर्थ वेल्थ का स्थान है, कुबेर का स्थान है, तो वहां से वेल्थ आती मिलती है। इस वजह से जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, या आपका जो भी बॉसेस होते हैं, उनका जो स्थान होता है, फेसिंग होती है, या तो हम नॉर्थ की तरफ रखते हैं, या तो हम ईस्ट की तरफ रखते हैं। और ये भी कहा जाता है कि जो भी नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन अपना फेस करके बैठ रहा है, उसको एक्सपर्ट कहा जाता है, या उसको एनलाइटमेंट मिलती है। डाइनिंग हॉल की बात करें, अगर आप खाना खाना चाहते हैं, तो आप आप इसको वेस्ट साइड में भी रख सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि वेस्ट साइड में आपको डाइजेस्टिंग अच्छे से मिलती है। अगर आप जानवर पालते हैं, तो उसको नॉर्थ वेस्ट में रखिए, प्लॉट में बेस्ट साइड रहेगा। अ, क्योंकि इसमें क्या होता है कि उनकी हेल्थ को इफेक्ट नहीं पहुंचता, उनकी हेल्थ अच्छी रहती है। इस वजह से नॉर्थ वेस्ट में भी रखना चाहिए उनको। और दूसरी चीज अगर हम थोड़ा ध्यान दें, तो नॉर्थ एरी साइड है, मतलब जहाँ कुबेर है वेल्थ, उसके बगल में हेल्थ आता है। तो वेल्थ एंड हेल्थ, तो हेल्थ जो है आपके जानवरों के लिए बहुत अच्छा होता है। और बेडरूम की बात करें, एशियन सेजेस की बात करें, तो उन्होंने बेडरूम कहा है कि नॉर्थ वेस्ट में रखिए, तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वहां से हवा बहुत अच्छी आती है, और कुबेर का स्थान भी होता है। और वेस्ट मतलब जहाँ से एयरी है, अगर आप इंडिया का मैप भी देखिए, तो वेस्टर्लीज आती है, विंड आती है हमारी। और नॉर्थ आपका हेल्थ वेल्थ हर तरीके से अच्छा होता है, इसलिए बेडरूम हमेशा नॉर्थ वेस्ट में रखना चाहिए। और आपकी जो भगवान है, उनको ईस्ट की तरफ, ये हमारा बेडरूम है।
याद रखिएगा फेसिंग कभी भी साउथ डायरेक्शन में नहीं होनी चाहिए, हमेशा नॉर्थ या ईस्ट में होनी चाहिए। तो बेडरूम में हम लोग कुबेर है, जैसा कि मैंने वही बताया, वही सेम चीज रिपीट है इसमें। अब स्लीपिंग पोजीशन की बात करें, फॉर बैड स्लीप नाइटमेयर्स हैविंगनेस चेस्ट सिकनेस, नॉर्थ डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। साउथ की तरफ मुंह हो सकता है, बट जो फेसिंग होगी वो आपकी नॉर्थ साइड में होनी चाहिए। मतलब कि फेसिंग की बात करें, फॉर इंक्रीजिंग प्रॉस्पेरिटी एंड अपलेंस। और वॉल्स को कभी सटा के नहीं रखना है, वॉल्स को थोड़ा सा हल्का सा एक आध इंच वॉल से हट के रखना है। बेस्ट पोजीशन होगी कि साउथ साइड में हो और फेसिंग आपकी नॉर्थ डायरेक्शन में हो या फिर ईस्ट डायरेक्शन में।